ناراض ہے یا راضی ہے یہ کیسے پتہ چلے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بتائیں گے کہ اللہ عز و جل جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ عز و جل سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے فرمایا، یا اللہ عز و جل آپ کے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں میری راضی ہونے کی پہلی علامات یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ عز و جل راضی ہے۔ اور جو بندے دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو جوان کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اور میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا کیا جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، 2 بیٹیوں والا بھی بروز قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا، 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نعمت سے تو میں محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے گا، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے شخص تمہیں کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو رحمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बहन है। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन को हलाल लुक़मा खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, इसको दीन की तालीम दो, इसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक इसका निकाह करके इसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जल जलाल की कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये है बेटी की शान और मर्तबा। बेटी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत होती है। और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मूसा अलन्नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ तो दौलत बखीलों के हाथ से निकाल कर सखियों के हाथ में दे देता हूँ। जब सखियों के हाथ में दौलत आ जाती है तो पैसा आ जाता है, फिर इस कौम में खुशहाली, अमन, सुकून और चैन आ जाता है। कौम का हर बंदा खुश नज़र आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों, नेक लोग हों, तो समझ लेना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस कौम पर राज़ी है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मूसा अलन्नबी अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने के बारे में, अपने राज़ी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राज़ी हैं तो समझ जाना मैं भी उससे राज़ी हूँ, और जिस शख्स से उसके माँ बाप राज़ी नहीं हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला भी उस शख्स से राज़ी नहीं हैं। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर से देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा ज़रूर होता है जिस घर में इस शख्स के, इसके माँ बाप राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, कामरानी ही हासिल करता है। और मोहल्ले में ही ऐसा घर भी होता है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राज़ी नहीं होते, नाखुश होते हैं, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। इसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप को खुश रखो, उससे दुआएं लो और उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं, ना खुश हैं, तो उन्हें राज़ी करो, उनसे माफ़ी मांगो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। तो आपने अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो और नेक बनो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हज़रत मूसा अलन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने राज़ी होने की और खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, राज़ी होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बहार ठंडी होती है और ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात के दूसरे पहर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाता है, जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा इस सर्दी में उठता है और ठंडे पानी से वज़ू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, ऐसे शख्स से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राज़ी रहता हूँ। तो नाज़रीन इकराम,
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर बार है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह पाक खुश होता है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिससे राज़ी होता है उसका इम्तिहान लेता है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जो चाहे वो कर सकता है, और जिसे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की राज़ी होने की या खुश होने की निशानी नहीं है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लम अकेले थे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर ईमान रखते थे, जो बुतों को पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इनसे कितनी मोहब्बत करता था, और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से आजमाइश थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इससे मोहब्बत करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये निशानियाँ नहीं हैं। बल्कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका सब कुछ सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपसे राज़ी और खुश होता है। ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की नेमतों में से ही नेमत हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे राज़ी होकर आपको दी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जिस शख्स से राज़ी हो उसे दौलत ही दे, उसे दुनिया के ऐशो आराम ही दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपने नबियों को आजमाया, हम तो उसके बंदे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम बनाकर ज़िंदान में डाल दिया गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन्हें वहाँ से निकाल के मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाक़ई किया करते थे कि 3 दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हर शख्स को अलग अलग तरीके से आजमाता है, अल्लाह अलग अलग चीज़ों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है, किसी को दौलत लेकर आजमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कुरान यसीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और ज़रूर आजमाएंगे। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम में साबित कदम रहने की तौफीक व रफ़ीक मरहमत अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबिल आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।